بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 31 ہے، اور اس سبق سے ہم دعوتی تحریکات کے بارے میں تفصیل کا آغاز کر رہے ہیں، یعنی جو دعوتی تحریکات ہیں ان کی تفصیل ہم اگلے چند اسباق میں پڑھیں گے، تاکہ ہمیں جو ہے وہ دعوتی تحریکات کا طریقہ کار کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے، انہوں نے کس طرح سے محنت کی ہے، اس چیز کا ہمیں علم ہو سکے۔ تو ان میں سب سے پہلی جو جماعت ہے وہ تبلیغی جماعت ہے، جس کے بانی مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ کے احوال اور ان کی دعوتی فکر کی تفصیل پڑھیں گے۔ آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو تبلیغی جماعت ہے، اس کے جو متعلقین ہیں یا اس سے وابستہ افراد جو ہیں، ان کی تعداد کروڑوں میں ہے، بر صغیر پاک و ہند اور اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر۔ نہ صرف یہ کہ بر صغیر پاک و ہند اور بنگلہ دیش میں اس کے متعلقین یا اس سے وابستہ افراد کی تعداد کروڑوں میں ہے، بلکہ اس کے متعلقین دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں، اور اس جیسی تحریک کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، یعنی کہ ایسی کوئی اور جماعت نہیں ہے جس نے اتنی بڑی جو ہے وہ تعداد میں لوگوں کو اپنے ساتھ منسلک کیا ہو، یا اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہو۔ تو اس جیسی تحریک کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بانی جو ہے مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے حالات و افکار کا جائزہ لیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ان کی یہ جو دعوتی تحریک ہے اس کی بنیاد کیسے پڑی، اور ان کی جو فکر ہے وہ کیا ہے، اور کس طرح سے جو ہے ان کی یہ دعوتی تحریک کام کرتی ہے۔ ان کے زندگی کے ان پہلوؤں پر غور کیا جائے جن سے مولانا کی سوچ کی بنیادیں استوار ہوئیں، تاکہ ان کی یہ جو تحریک ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملے۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ جو تھے، یہ 1303 ہجری میں پیدا ہوئے، اور جب انہوں نے آنکھ کھولی تو ان کے ارد گرد جو ہے وہ ایک دینی ماحول تھا، تعلق مع اللہ، اور اس طرح جو ہے وہ خدمت خلق کا ماحول انہوں نے دیکھا ہے، کیونکہ ان کے جو والد تھے مولانا محمد اسماعیل، وہ ذکر و عبادت اور خدمت خلق کے اندر مصروف رہتے تھے، قرآن کی تعلیم میں شب و روز جو ہے وہ مصروف رہتے تھے، ان کا یہی جو ہے وہ پیشہ تھا، اور وہ اسی کے اندر جو ہے وہ مصروف رہا کرتے تھے، خدمت خلق بھی کرتے تھے، مسافرین جو مسافر ہوا کرتے تھے ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا۔ ان کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی مزدور جو ہے وہ بوجھ کندھے پہ رکھ کر سامنے آتا، وہاں سے اس کو گزر ہوتا، تو جو ہے وہ اس کا بوجھ اتار کر رکھ دیتے، اس کو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ ڈول کھینچ کر کنویں سے پانی نکال کر پلاتے، پھر نماز شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ اپنے بندوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب آنکھ کھولی تو ان کے والد جو تھے، اور یہ ایسی عمر ہوتی ہے شروع کی، اس میں انسان جو ہے وہ دیکھ کر سیکھ رہا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے ماحول سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے ماحول میں پرورش پائی۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو والد تھے مولانا اسماعیل، وہ 1315 میں جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا، گویا کہ ان کی جو ابتدائی عمر تھی وہ اپنے والد کے معمولات دیکھنے میں گزری ہے، ان کو اپنے والد کے معمولات دیکھنے کا موقع ملا ہے، یعنی کہ 1303 میں ان کی پیدائش ہے، اور 1315 میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ شروع کے جو چند سال ہیں، یہ ایسی زندگی ہے جس زندگی میں انسان جو ہے وہ انسان کی سوچ کے جو خطوط ہیں وہ متعین ہوتے ہیں۔ اس عمر میں انہوں نے اپنے ماحول کو دیکھا، جس ماحول میں ان کے والد جو ہے وہ خدمت خلق کر رہے ہیں، ذکر و عبادت میں مشغول ہیں، قرآن کی تعلیم میں مصروف ہیں، تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ آنکھ کھولی۔ اس کے بعد مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ گنگو آ گئے، جہاں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں 10 سال گزارے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی بھی عبادت و ریاضت سے
जो है वो इबादत और रियाजत से क्या कहते हैं वो मुत्तसिफ थी। इबादत और रियाजत के साथ साथ वो इलाही कलिमतुल्लाह के लिए जुहद मुसलसल भी करते थे। तो इस वजह से जो मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह ताला की ज़िंदगी है, गोया कि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ताला ने जो 10 साल उनकी सोबत में गुजारे हैं, 10 साल उनको उनकी सोबत में रहने का मौका मिला है, तो एक तरफ तो इबादत और रियाजत हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह ताला की उनके सामने थी, और साथ साथ जो है वो इलाही कलिमतुल्लाह के लिए जो उनकी जोहद मुसलसल थी वो भी उनके सामने थी। जब शामली के मैदान में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ मुसलमानों ने अलम जिहाद बुलंद किया, तो हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह ताला हज़रत जो है वो इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला की जो है वो क़यादत में उस जो है वो जिहाद में शरीक थे। सियासत में भी हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह ताला का एक नज़रिया था। तो गोया कि ये जो 10 साल हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह ताला की सोबत में उन्होंने जो है वो गुजारे हैं, तो ज़रूर उनकी जो अफकार हैं, जो उनके नज़रियात हैं, उनसे वो मुतासिर हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उनके अफकार से वो मुतासिर न हुए हों, इसकी गुंजाइश नहीं है। तो पहले तो शुरू के जो चंद साल थे इब्तदाई, वो अपने वालिद को देखा, ज़िक्र इबादत में मशगूल हैं, खिदमत खल्क में मशगूल हैं। उसके बाद जो है वो मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह ताला की सोहबत में आ गए, जहाँ उन्होंने इबादत और रियाजत के साथ साथ इलाही कलिमतुल्लाह की जोहद मुसलसल को भी करीब से देखा है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ताला की तरबियत में उनके वालिद और हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह ताला के साथ साथ उनके भाई मौलाना याह्या साहब का भी अहम किरदार था। गंगो आने के बाद जो है वो हज़रत मौलाना याह्या साहब से जो उनके भाई थे उनसे भी उन्होंने तालीम हासिल की है। जब हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह ताला की वफ़ात हो गई, तो उनकी वफ़ात के बाद मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ताला हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ताला के हल्क़े दर्स में शरीक हुए, फिर उनसे जो है वो फैज़याब हुए, और उनके जो नज़रियात थे उनको भी करीब से देखा, उनके अफकार को भी जो है वो अपने अंदर समाया। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ताला के हाथ पर हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ताला ने बैत जिहाद भी की, जो है दूसरी बैत जो इस्लाह के लिए होती है उसकी भी दरख्वास्त की, लेकिन हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ताला ने उनको खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह ताला का मशवरा दिया इस्लाह के लिए, तो उनके हाथ पर बैत की, लेकिन जिहाद की बैत जो है वो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ताला के हाथ पर की है। इस बैत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ताला महज चंद दीनी बातों के मुबल्लिग नहीं थे, बल्कि उनकी ज़िंदगी के हकीकी मिशन को मुतय्यन करने में इस बैत से बड़ी मदद मिलती है। यानी कि ये नहीं है जैसा कि बाज़ लोग कहते हैं कि सिर्फ चंद बातें हैं, तबलीगी जमात का जो मंशूर है वो चंद बातें हैं। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ताला ने महज चंद बातों के लिए, चंद आमाल के लिए ये तहरीक शुरू की थी, ऐसा नहीं है, बल्कि हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ताला के हाथ पर वो बैत कर रहे हैं, बैत जिहाद कर रहे हैं, तो इससे उनकी ज़िंदगी का जो हकीकी मिशन है उसको मुतय्यन करने में बड़ी मदद मिलती है। उनकी ये जो तहरीक थी वो सिर्फ चंद आमाल की तहरीक नहीं थी, सिर्फ नमाज की तहरीक नहीं थी, बल्कि जो उनकी ज़िंदगी का हकीकी मिशन था गलबा दीन, और उसकी जो है वो तमहीद के तौर पर उन्होंने ये तहरीक शुरू की। तो गोया कि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ताला की जो सोच थी वो मुकम्मल तौर पर अपने अकाबिर से हम आहंग थी। जिस तरह के शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ताला के नज़रियात थे, उससे पहले हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह ताला के जो नज़रियात और अफकार थे उनसे उनकी सोच बिल्कुल और मुकम्मल तौर पर हम आहंग थी। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ताला की तहरीक का मुताला जो है वो इसी पस मंज़र में किया जाना ज़रूरी है। यानी ये नहीं कि उसको सिर्फ उस तहरीक को ये समझा जाए कि ये सिर्फ चंद आमाल की तहरीक है, चंद आमाल की तरफ दावत देने वाली तहरीक है, या सिर्फ नमाज कायम करने की दावत देने की तहरीक है, ऐसा नहीं है। बल्कि इसी पस मंज़र को ज़हन में रखा जाए जब यानी कि वो मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह ताला से भी बैत हो रहे हैं, उनके अफकार को भी ले रहे हैं, उनसे भी फैज़याब हो रहे हैं, और साथ साथ हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ताला के अफकार को भी जो है वो अपने अफकार का हिस्सा बना रहे हैं और उनसे भी बैत जिहाद कर रहे हैं। तो मौलाना खुद अपने इख्तियार करदा तरीक़ाकार को असास और बुनियाद की बजाय तमहीद की हैसियत देते हैं। यानी ये नहीं कि उनका जो तरीक़ाकार है जो उन्होंने तबलीगी जमात के लिए मुतय्यन किया है
وہ इसको असास और बुनियाद करार दें, बल्कि वो इसको तमहीद की हैसियत करार देते हैं। एक मकतूब में वो फरमाते हैं कि दीन के इदारे और जितने भी ज़रूरत के उमूर हैं उन सब के लिए तबलीग जो है ये बमंज़िल ज़मीन हमवार करने के, गोया कि ये एक तमहीदी, जैसे कि कोई खेती बाड़ी करता है तो सबसे पहले जो है ना उसके लिए तमहीदी तौर पर सबसे पहले बतौर तमहीद के ज़मीन को हमवार किया जाता है, फिर बाकी काम सारे उसके बाद होते हैं। और बमंज़िला बारिश के है, तबलीग बमंज़िला बारिश के है, और दीगर जितने भी उमूर हैं उस ज़मीन मज़हब के ऊपर बमंज़िला बागात परवरिश करने के हैं। यानी कि ये जो तबलीग है, ये तबलीग जो है वो ज़मीन मज़हब के बल्कि बमंज़िला बारिश के है। और जैसे कि बारिश होती है तो ज़मीन जो है वो बागात के लिए तैयार हो जाती है बतौर तमहीद के, वो गीली हो जाती है, उसके अंदर जो है वो कोई भी बीज अगर डाला जाए तो उसके उगने की उम्मीद होती है। तो ये तबलीग भी बमंज़िला बारिश के। और दीगर जो उमूर हैं वो ऊपर जो बागात हैं उन बागात के हैं कि उस तबलीग की बेस पर जो है वो दीगर बागात जो है वो उग रहे हैं, दीगर जितने भी जो है वो दीन के काम हैं। तो ये मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ताला की जो तबलीगी जमात है इसको सिर्फ चंद आमाल के अंदर महदूद नहीं किया जा सकता। लिहाजा आज के सबक का खुलासा ये हुआ कि हमने दावती तहरीकें जो है उनके बारे में पढ़ने का आगाज़ किया है, जिनमें से सबसे पहली दावती तहरीक जो है वो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ताला की है। और मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ताला चूँकि तबलीगी जमात के बानी हैं तो उनकी जो सवाने है या उनके जो अहवाल हैं और उनकी जो दावती फ़िक्र है उसकी तफसील को हमने आज के सबक में पढ़ा है, ताकि तबलीगी जमात की जो तहरीक है इसको समझने में हमें मदद मिल सके। जो बानी है उनके अपने अहवाल क्या थे और उनकी दावती फ़िक्र क्या थी, किस तरह से उन्होंने जो है वो कहाँ का तालीम हासिल की, किन से फैज़याब हुए, ताकि हमें उनकी तबलीगी जमात जो है उसको समझने में मदद मिल सके। अगले सबक में हम जो है वो तबलीगी जमात का पस मंज़र पढ़ेंगे, यानी कि तबलीगी जमात मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ताला ने किन हालात में शुरू की, उस वक़्त हालात क्या थे, मुसलमानों की दीनी हालत क्या थी, मुसलमानों की जो है वो अखलाकी हालत क्या थी, किस तरह से मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ताला के दिल में ये दाइया पैदा हुआ, ये जो है वो तहरीक पैदा हुई कि मुसलमानों को दीन पर वापस लाया जाए। तो मुसलमानों के लिए इस तबलीगी जमात का क्या रोल है, किस तरह से इसका आगाज़ हुआ, इसका पस मंज़र हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।